اکثر بھلے آدمیوں کے حالات پر غور کرنے کے بعد میری یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ میاں بیوی میں سب سے بڑا جھگڑے کا جھوپڑا تنخواہ کا حساب ہے۔ آپ خود ہی غور کیجئے کہ جو شخص پورے مہینے بھر محنت کر کے گھر میں تنخواہ لائے تو اس کا تنخواہ میں کوئی حق ہے یا نہیں؟ یہ کیا کہ بیوی تو ساری تنخواہ اٹھانے کی حقدار ہو اور میاں کو اس میں سے ایک حبہ نہ ملے۔ بس انہی باتوں پر میاں کو غصہ آتا ہے، اور جب میاں کو غصہ آئے تو پھر بیوی کو کیوں نہ آئے؟ غرض لڑائی ہوتی ہے اور خوب ہوتی ہے۔ پہلی تاریخ ہوئی، میاں تنخواہ لائے اور حساب کرنے بیٹھے، بیوی سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ کاغذ آیا، میاں نے فاؤنٹین پین نکالا اور لکھائی شروع ہوئی۔ ہاں صاحب، تو اب حساب بولیے۔ میں کیا بولوں؟ آخر پچھلے مہینے کا پرچہ کیا ہوا؟ جہاں مہینہ ہوا نہیں اور تم نے کہا ہاں صاحب اب بولو حساب۔ 10 برس سے حساب کر رہے ہو اور اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ بتاؤں تو میں بتاؤں، نہیں تو آپ ایک حرف نہ لکھیں۔ اچھا لکھیے، نیاز کا 1 روپیہ۔ نیاز کا 1 روپیہ؟ میں نے لکھ تو لیا، مگر یہ بتائیے کہ آخر یہ روپیہ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے کسی کو ہاتھ اٹھا کر 1 پیسہ دیا ہو، یا کبھی نیاز کے لیے مٹھائی آئی ہو۔ کہیں ایسا نہ کرنا کہ روپیہ لو تو نیاز کے لیے اور کسی اور کام میں اٹھا بیٹھو۔ خدا کی قسم، نیاز کے پیسے میں سے خود اپنے پر کچھ خرچ کرنا بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہے تو اٹھاؤ اپنی تنخواہ، خود ہی حساب کرو، خود ہی تقسیم بھی کرو۔ کوڑی کوڑی کا حساب کر کے تو روپیہ کھسکاتے ہو اور اوپر سے ایسی الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہو۔ واہ بھائی واہ، تم تو خفا ہی ہو گئی۔ خدا معلوم تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے کہ ذرا مذاق کیا اور تم بگڑ گئیں۔ اچھا آگے چلو۔ مکان کا کرایہ 22 روپے۔ اوفو، خدا غارت کرے اس مکاندار کو۔ ظالم کرایہ تو پہلی تاریخ کو آ کر وصول کر لیتا ہے اور مرمت کو کہو تو جواب تک نہیں دیتا۔ سامنے کی دیوار دیکھو، ادھر ہی کھڑی ہے۔ اب کی برسات میں نہ آ پڑے تو میرا ذمہ، خدا معلوم کون کون اس کے نیچے دب کر مرنے والا ہے۔ کہو جی، اگر یہ مکان چھوڑ دیں تو کیا؟ دفتر کی قربت کی وجہ سے اس کھنڈر میں پڑے ہیں، ورنہ خدا کی قسم 22 روپے میں ایسے 4 مکان مل سکتے ہیں۔ بھائی اس مکاندار سے ہم تو تنگ آ گئے۔ یہ غضب تو دیکھو کہ مکان کی تو یہ حالت اور پچھلے مہینے سے 20 کے 22 کر دیے۔ تو ہاں، مکان کے 22 روپے۔ آگے چلو۔ امیرن کو 9 روپے۔ یہ امیرن کون بلا ہیں؟ اے تم امیرن کو نہیں جانتے؟ اور آخر تمہیں روز روٹیاں ٹھونک کر کون دیتا ہے؟ تم تو دن بدن ننھے بچے بنتے چلے جاتے ہو۔ سال بھر سے پکانے والی نوکر ہے، اس کا حساب کرتے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ امیرن کون ہے۔ ارے تم نے بھی کس سڑیل ماما کو رکھ چھوڑا ہے۔ نکالو چڑیل کو، مجھے تو اس کی صورت دیکھے سے گھن آتی ہے۔ تو میں کب منع کرتی ہوں؟ نکال دو اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر وزادار طرحدار خوبصورت ماما کو لے آؤ، پھر دیکھو کہ وہ کھانا پکاتی ہے یا اپنی کنگھی چوٹی میں گرفتار رہتی ہے۔ خیر چلی کٹی باتیں چھوڑو۔ یہ بتاؤ کہ یہ امیرن جو 8 روز سے گھر جا کر بیٹھ رہی ہے، اس کی تنخواہ ان کو کیوں دی جائے گی؟ ہم ایک دن دفتر نہ جائیں تو تنخواہ کٹ جائے، اور یہ 8 روز اپنے گھر سے نہ آئیں اور پوری تنخواہ رکھوا لیں۔ اچھا کاٹ لو 8 دن کی تنخواہ، دیکھ لو کل اپنے گھر چلی جاتی ہے یا نہیں۔ یہ تو بڑا غضب ہے کہ کوئی بیمار پڑے اور اپنے گھر نہ جائے، کسی کے ہاں شادی غمی ہو اور گھر نہ جائے۔ نوکری کیا ہوئی، عذاب جان ہو گئی۔ کوئی اس نے 9 روپے میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کہ مرتی مر جائے اور آپ کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھے۔ امیرن کے 8 روپے اور فرمائیے۔ 8 نہیں 9، اور گلو کے 4 روپے۔ کلو کے 4 روپے؟ کیوں، اس کی تنخواہ پر کچھ نہیں کہا؟ تمہارا چہیتا نوکر ہے نا، جب دیکھو ڈیوڑی خالی پڑی رہتی ہے۔ کچھ لانے بھیجو تو صبح کا گیا شام کو آئے، سودا لائے تو پیسے میں سے 1 پیسہ کھا جائے، جب آواز دو غائب۔ اور نواب صاحب ہیں کہ گھر سے دور درخت کے نیچے بیٹھے یار لوگوں سے تاش کھیل رہے ہیں۔ جوا کھیلتا ہے مواں، پکڑا جائے تو میرے دل میں بھی ٹھنڈک پڑے۔ تم تو خواہ جس کے چاہتی ہو پیچھے پڑ جاتی ہو۔ آج کل کے زمانے میں 4 روپے میں کہیں نوکر ملتا ہے؟ 4 روپے؟ تم اس بھروسے پر نہ رہنا، وہ اس گھر سے خاصے 10-15 روپے اور پیدا کر لیتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح
क्या बना ठना फिरता है, गोया दुनिया जहान की दौलत उसके यहाँ आ गई है। ईद में जो उसने शेरवानी बनवाई है ना, वो तो जरा जाकर देखो, 10 रुपए गज का कपड़ा है। ऐसी शेरवानी तुमने सारी उम्र भी ना पहनी होगी। मैं खफा होती हूँ, तुम उसकी तरफदारी करते हो। मैंने भी समझ लिया कि जब घर वाले ही घर लुटवाना चाहते हैं तो लुटवाने दो, मैं बीच में बोलकर क्यों बुरी बनूं। 4 रुपए क्या, तुम उसको 10 करोड़ दो मेरी बला से। अजी छोड़ो इन झगड़ों को, अच्छा आगे चलो। कसाई के 7 रुपए। उसको तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। बदमाश ने सारे महीने कुत्तों का रातब खिलाया। जरा तुम ही ईमान से कहना कि एक दिन भी गोश्त गला है? रुपए का 2 सेर गोश्त देता है और उठाकर देखो तो निरे छिछड़े होते हैं। तो ना दो, मेरा क्या जाता है, वो जाने और तुम जानो, या तुम्हारे मियाँ गुल्लू जाने। कसाई के 7 रुपए और तरकारी वाले के 5 रुपए। तरकारी वाली के 5 रुपए। बनिए के 75 रुपए। 75 रुपए? गजब खुदा का, हम 2 मियाँ बीवी और ये 2 बच्चे महीना भर में 75 रुपए का अनाज खा गए। आदमी क्या हुए, पेठा रत्तू हो गए। खा गए या नहीं खा गए ये तो मैं जानती नहीं। लो, ये बनिए का पर्चा है, खुद देख लो 75 रुपए होते हैं या नहीं। गेहूं 1 मन 10 सेर 10 रुपए के। क्या भाव हुए? रुपए के 5 सेर हैं। तमाम दुनिया में गुल मच रहा है कि गल्ला सस्ता हो गया है, गल्ला सस्ता हो गया है, और हमारे यहाँ वही पुराना भाव चला जाता है। बात यह है कि किसी एक दुकान से हिसाब रखने में यही मुसीबतें आती हैं। आइंदा महीने में हम खुद बाजार जाकर गल्ला लाएंगे। घी 10.25 रुपए का। घी क्या, इसी को घी कहते हैं जो उस बदमाश की दुकान से आता है? सारा बना हुआ घी होता है। बस शहर के रहने में यही आफत है, न घी अच्छा मिले, न गल्ला अच्छा मिले, न गोश्त अच्छा मिले, न तरकारी अच्छी मिले। मुट्ठियां भर भर के रुपया देते जाओ, सामान आए तो इस शक्ल का। मैं तो अपना तबादला कहीं बाहर करा लेता हूँ, कम से कम ऐसा घी तो मिलेगा जिससे कुछ ताकत आए। अच्छा आगे चलो। आगे चलूं क्या खाक? लो उठाओ अपना हिसाब, 75 रुपए लिख के देता हूँ। है ये कि तुम्हें घरदारी करनी नहीं आती, जो चीज आती है चुपके से रख लेती हो। ये नहीं होता कि लाने वाले के मुंह पर मारो कि जाओ हम ऐसा माल नहीं लेते। यहाँ मेहनत करते करते हम मुए जाते हैं और बीवी साहिबा हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर अंधाधुंध लुटाए चली जाती हैं। ये भी अच्छी कही कि मैं आपका रुपया लुटा रही हूँ। अरे कभी हिसाब से 1 पैसा भी ज्यादा मुझे दिया है जो ये तूफान उठाए जा रहे हैं? अब मुझे आप ऐसे कौन से 90 टके थमाए देते हैं जो सारी कमाई उठाने का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है? अरे उठाओ अपने रुपए, खुद ही कमाओ और खुद ही उठाओ। मैं बीच में पड़कर मुफ्त में बुरी बनूं। अपनी नहीं कहते, ये दोस्त आए लाओ चाय, वो दोस्त आए लाओ खाना। आज थिएटर चले जा रहे हैं, कल सिनेमा चले जा रहे हैं। आप ही नहीं जाते, 2-3 दोस्तों को भी समेट कर साथ ले जाते हैं। पैसा खर्च ना होगा तो क्या होगा? क्या किसी नफाकते को ये भी नसीब हुआ है कि लो भाई, रोज ये हमको तमाशे में ले जाते हैं, आज हम इनको भी ले चले? खुद ही तो तुम्हारी हमियानी खुली पड़ती है। मुझे क्या कहते हो? पहले अपने को देखो कि तुम रुपया लुटा रहे हो या मैं। सारा दिन मेहनत करके तफरीह के लिए शाम को तमाशे में भी न जाऊं तो क्या मर जाऊं? तुमको तो मेरा हर काम बुरा मालूम होता है। और तुम ही कहो कि जब 1-2 दोस्त साथ हों तो ये कैसे करूं कि खुद टिकट ले लूं और उनसे कह दूं कि मियां तुम अपनी टिकट खुद खरीदो। मुझसे तो ये बेहयाई नहीं हो सकती। है तो मैं ये कब कहती हूँ कि तुम बेहया बनो? मेरा तो ये कहना है कि जब तुम खुद रुपया खर्च करते हो ना, तो इसका इल्जाम मुझ पर क्यों रखते हो? तुम्हारा रुपया है, जिस तरह चाहो रखो, जिस तरह चाहो उठाओ। अगर मैं कुछ कहूँ तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल। अच्छा आगे चलो। हाँ, धोबी के 3 रुपए। कसम खुदा की, धोबी से तो मेरी जान बेजार हो गई है। मेरी हुकूमत होती तो मैं सबसे पहले इसको फांसी पर लटका देता। अब यही देखो कि मैं जो कुर्ता पहने बैठा हूं, इसका क्या हाल है। 2 धूप में नामाकूल ने धज्जियां कर दिया है। ये तो कपड़े फाड़ता है, आखिर तुम उसकी तनख्वाह में से काट क्यों नहीं लेती? मैं फिर वही कहता हूं कि तुम में मसावाती हद दर्जे की है। 2 दफा तनख्वाह काट लो तो बेटा ठीक हो जाते हैं। लकड़ियां 6 रुपए की। क्या कहा? लकड़ियां 6 रुपए की?
1 महीने में इकट्ठी 6 रुपए की लकड़ियां जला डाली। रुपए की 4 मन तो लकड़ियां आती हैं और माशाल्लाह आपके यहाँ 6 रुपए की जल जाती हैं। रुपए की 4 मन लकड़ियां आपके घर में आती होंगी, बड़ी मुश्किल से 1.25 मन की मिलती हैं, और आप जाने न बूझें झट एतराज कर बैठते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए, सुबह के 4 बजे से जो चूल्हा सुलगता है तो कहीं रात को 12 बजे जाकर ठंडा होता है। आप हैं कि मुंह धोएं तो गर्म पानी से, वजू करें तो गर्म पानी से, नहाएं तो गर्म पानी से, दिन में कुछ नहीं तो 20-25 चिलमें जरूर भरी जाती हैं। जब सारा दिन चूल्हा धर धर जलेगा तो लकड़ी ना उठेगी तो क्या होगा। अच्छा साहब, तुम सच्ची और हम झूठे। लो लिखे लेते हैं लकड़ियां 6 रुपए की। मेहतर का 1 रुपया। मेहतर का 1 रुपया। मगर हाँ, अब ये 2 वक्ती को नहीं आता। जरा इससे कह देना कि अब की ऐसा किया तो 8 आने काट लूंगा। कर्जे के 18 रुपए। खुदा के लिए बीवी, तुम सब कुछ करो मगर लिल्लाह कर्जा ना करो। कर्जे के नाम से मेरा दम निकलता है। आखिर मैं भी तो सुनूं कि ये कर्जा हुआ काहे में। तुम बहुत दिन से कह रहे थे ना कि मुझे चिकन के कुर्ते बनवा दो। परसों रामलाल बजाज आया था, उससे 2 कुर्तों की चिकन ले ली। कहो तो वापस कर दूं। तो क्या 2 कुर्तों की चिकन 18 रुपए की होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी कोई 2-2.25 रुपए की। तो रुपया सवा रुपया क्यों कहते हो? 3-4 आने कहो। पूरे 7.5 रुपए की है, 7.5 रुपए की। अच्छा 7.5 सही, और बाकी का मैंने पैजामों का कपड़ा ले लिया। क्यों, पिछले पैजामे क्या हुए? 2 ही महीने तो हुए कि 6 पैजामों का कपड़ा ला कर दिया था। तुम्हें तो हौका है, न देखती हो कि जरूरत है, न ये देखती हो कि घर में पैसा है। जहां कोई चीज देखी और लौट गई। जरूरत हो या ना हो, तुमको खरीद जरूर लेना है। मैंने कल्लू से कह दिया था कि इन भुट्टे वालों को दरवाजे में ना घुसने दिया कर, मगर जब घर की बीवी ही रुपया लुटाने पर आमादा हो तो वो बेचारा क्या करे। बेगम साहब, तुमको मालूम भी है कि ये फेरी फिरने वाले क्या करते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों पर जो पुराना धुराना सड़ा भुसा माल होता है वो ले आते हैं और तुम जैसी घर वालियों से पैसे के 2 पैसे खड़े कर लेते हैं। और फरमाइए, क्या इसके अलावा और भी किसी को कुछ देना है? हाँ, रामू के 40 रुपए हैं। 10 रुपए इस महीने में दे दो, बाकी फिर थोड़े थोड़े करके दे देना। रामू कौन है? वही सुई पोत वाली? देखो बीवी, कान खोल कर सुन लो। मुझे उस औरत का घर में आना बुरा मालूम होता है। उससे उल्टी सीधी चीजें खरीद कर तुम्हें कर्जा लेने की आदत पड़ी है। जरा मैं भी तो देखूं कि उससे आपने ऐसी कौन सी चीज खरीदी है जो मेरे काम आई है या आपके काम आई हो। खैर, अब तक तो मैंने नहीं कहा था। हाँ, अब कहता हूं कि तुमने अपने जहेज का सारा गोटा किनारी उधेड़ उधेड़ कर उसी की नजर कर दिया, और उसके बदले में लिया क्या है? पहराने की दर्जन की चीनी की रकाबियां, झूठे मोतियों की लड़ियां, जापान की बनी हुई डरमुही गुड़िया। गरज ऐसी ही अला बला खरीद कर सारा जहेज नेग लगा दिया, और इस पर भी रामू के 40 रुपए बाकी हैं। हे, ये तुमने घर का खूब घरवा किया है। मियाँ को तनख्वाह तो है 225 और बीवी महीने में उठावें 300। आखिर ये घर चलेगा तो कैसे चलेगा? तुम हो के हर महीने कुछ न कुछ कर्जा जरूर चढ़ा बैठती हो। आय हाय, तो मैंने कब कहा कि खुदा के लिए ये घरदारी मेरे सुपुर्द करो। ऐसा ही है तो खुद ही तनख्वाह लाओ, खुद ही उठाओ। गजब खुदा का कि घर के खर्च तो खुद बढ़ाएं और बीवी पर आंखें निकालें। जाओ, मैं तुम्हारा 1-2 रुपया नहीं लेती। तुम जानो और तुम्हारा घर जाने। लीजिए, चली गई। मगर जनाब, आप समझे भी कि आखिर इस गड़बड़ की वजह क्या है? वजह यह है कि मियाँ हो या बीवी बेजरूरत अखराजात बढ़ा लेते हैं। तनख्वाह आने पर जब जमा खर्च पर नजर डाली जाती है, उस वक्त ख्याल आता है कि हैं, ये कर्जा कैसे अदा होगा। मियाँ को बीवी पर और बीवी को मियाँ पर गुस्सा आता है। एक तरफ से हिसाब पर जाओ बेजाए एतराज होते हैं, तो दूसरी तरफ से जले कटे जवाब दिए जाते हैं। बात बढ़ जाती है, मगर भाई हमारी सुनता कौन है। खैर, हम तो अपनी सी कहे देते हैं। आइंदा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने।